लोये सब सामूह्यं ऐसो कंचन मुक्तारो सर्व पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेषि परमभावै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सामूह्यं ऐसो पंचन मुक्तारो सर्व पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेषि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सामूह्यं ऐसो पंचन मुक्तारो सर्व पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेषि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सामूह्यं ऐसो पंचन मुक्तारो सर्व पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेषि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये ज्वार भाटा क्या बोलते हैं जानते हैं? ज्वार किसको बोलते हैं, भाटा किसको बोलते हैं? नो यू डोंट नो? सुना हुआ है सावंतवाड़ी वहाँ तो बहुत आता जाता है। मेरी फैमिली सावंतवाड़ी, लेकिन मेरा जन्म ग्वालियर में था। अरे बाप रे। ज्वार भाटा टाइड्स एंड एब्स। टाइड्स एंड एब्स। तो टाइड में घबरा जाते हैं या एबी में घबरा जाते हैं? ओट में तो अच्छा है, जमीन खुद We get pulled. we get pulled and वो तो सॉफ्ट होती है। अगर थोड़ा इतना पाँव चल गया पीछे टाइट आया तो खलास हो जाएगी। ऐसा लाइफ में आता जाता है। खुला पैसे ना मेरा व्यस्त जगह मिले बस रखे हाउस थोड़ी हम खुशी ठंडी में ठंडी आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, ठहरो ठहरो बैठो। जरूर तो मन को ठंडी ठंडी। हाँ समझ गए? ये जो प्रसाद है प्रसाद बोल प्रसाद बोल तू गाय रीता गाय ज्योति सपना माता। अरे वाह ये सब उनको दो गुजराती पढ़ी नहीं है तो गुजराती अरे तक नहीं आएगी आप जरूर देखना। दिस इज रियल गुड बहुत अच्छा है। સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો જાગરો ને સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો જાગરો ને આંખોમાં
કેવું સૂને કેવું જાગવું કેવું સૂને કેવું જાગવું લોચન બીડ્યાને સૃષ્ટિ સો ત્યાં ઉગડી લોચન વીર્યાને સૃષ્ટિ સો ત્યાં ઉગડી 668 હોન્ડા સમાધિ 668 હોન્ડા લાગી રે અધોકડી સમાધિ લાગી રે અધોકડી સમાધિ લાગી રે અધોગડી જ્યારે કાંઠા છે ત્યાં મજદાર રે જોગીડા હાથે જ્યારે કાંઠા છે ત્યાં મજદાર રે જોગીડા હાથે કેવું પરાયું કેવું આગવું કેવું પરાયું કેવું આગવું કેવું પરાયું કેવું આગવું કેવું પરાયું કેવું આગવું સામે આવે તે પહેલા સુખડા મેં પામી લીધા સામે આવે તે પહેલા સુખડા ને પામી લીધા આડે આવે તે પહેલા દુખડા મેં વામી લીધા આડે આવે તે પહેલા દુખડા મેં વામી લીધા મારો તે લાગે મુને બાર રે જોગીડા હાથે મારો તે લાગે મુને બાર રે જોગીડા હાથે કેવું ભોગવવું કેવું ત્યાગવું કેવું ભોગવવું કેવું ત્યાગવું કેવું ભોગવવું કેવું ત્યાગવું કેવું ભોગવવું કેવું ત્યાગવું શ્રાવણના શ્યામલ નભમાં પોતાની પાવક જ્યોતે શ્રાવણના શ્યામલ નવમાં પોતાની પાવક જ્યોતે ઘૂમી ઘૂમીને વિજલ ખાતી પછડાટ પોતે ઘૂમી ઘૂમીને બીજલ ખાતી પછડાટ પોતે લપસીને લથડે લાખો વાર રે જોગીડા હાથે લપસીને લથડે લાખો વાર રે જોગીડા હાથે કેવું રે રૂઝાવું કેવું વાગવું 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 પંખી પોતામાં ઉડી પોતામાં ડૂબી રહેતું પંખી પોતામાં ઉડી પોતામાં ડૂબી રહેતું આખું આકાશ એને ચોગમલા પેટી લેતું આખું આકાશ એને ચોગમલા પેટી લેતું ઊંચું ને ઊંડું હારો હાર રે જોગીડા તે ઊંચું ને ઊંડું હારો હાર રે જોગીડા
रे जोगीड़ा ते આંખોમાં ભીનો ભીનો બાર રે જોગીડા હાથે કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું કેવું સૂવું ને કેવું દાદાજી આમાં કહે છે કે શુક્લા આવે પહેલા એ મારી પાસે નથી આડે આવે તે પેલા દુખડા મેં વામી લીધા. એ કેવી રીતે છે બંને શુક્લા ને દુખડાનું સુખડા તો છે તે સુખ તો પામી લીધું છે સામે આવે તે પહેલા, પણ એ સુખ તો હવે મેં મારું સુખ તો પામી લીધું છે એટલે સામે આવેલું સુખ છે તે મારું આગળનું માનેલું સુખ આવી ગયું. હા, પણ એ તો મેં પામી લીધું. હવે મારો સ્વભાવ પામી લીધો ને. આડે આવે તે મેં દુખડા પામી લીધા એટલે કે છે ને તમારા દુખડા લઈ લો આમ કે છે. શું કે છે? હા, સમજાયું ને? એટલે દુખડું આવે ને આમ કરી લઈ લેવાનું, પણ દુખડું કોઈને ગમે નહીં ને એવી રીતે લેવાનું. પોતાનું દુઃખ પડે ગમશે લેવાનું. ખુદકા હવે 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 એવી રીતે લેજો. આમ દેખાવ નહીં કરવાનો, આમ બોલવાનું નહીં. હા, ના ના અંદરથી અંદરથી કવિનું છે ને આ તો કવિ કી ભાષા હે. દાદા છેલ્લી લાઈન છે ને, પંખી પોતામાં ઉડી પોતામાં ડૂબી, એવા અમુક પંખી હોય છે, પોતામાં ઉડે પોતામાં ડૂબે પોતામાં ડૂબે. એટલે આ આપણું પંખી કેવું છે કે ઉડાય ખરું ડૂબાય ખરું, ઉડાય ખરું ડૂબાય ખરું, ઉડાય ખરું ડૂબાય ખરું. આખું આકાશ છે ને ચોગમ લપેટી લેતું. કવિએ કલ્પના કરી છે. એમાં આખું આકાશ ચોગમ લપેટી લીધું, પણ એમાં એમાં રહ્યા કરે છે. એવું આપણે આ સંસાર સાગરમાં એવી રીતે રહીએ છીએ. સમજાય ને? ઉપર નીચે. એવું પંખી આકાશમાં, પંખી આકાશમાં. મતલબ કવિની કલ્પના છે આખી. આખું આકાશ પહેલા પંખીને માટે જ છે ને. બરાબર. ઊંચું ને ઊંડું હારો હાર રે, એટલે પોતે કલ્પના કરે છે આ કવિ કે આપણું જીવન કેવું છે, કે છે જીવન કેવું કેવું છે. ઊંચું એ ખરું ઊંડું એ ખરું, બેહો બાજુનું રે જોગીડા હાથે. એમાં તરીએ કે તાગીએ, તરવું કે ત્યાં તરવું, તાગવું તાગવું. ટેકનિકલ ગુજરાતી શબ્દ છે કવિનો. ડિક્શનરી પડવું પડશે. કવિને પૂછવા જવું પડે નથી. कवियों भाषा कवियों नहीं भाषा स्वयं बोला मतलब तैर जाना और या फिर डूब जाना। हाँ ऐसा मैंने ऐसा अंदाज लगा लिया। ऐसा 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 ही ऑपोजिट से सारा लाइफ ऑपोजिट्स वाला है, सारा लाइफ ऑपोजिट्स वाला है और हमें अभी कोई ऑपोजिशन नहीं रहा, हमें किसी भी प्रकार का ऑपोजिशन नहीं रहा। सुख और दुख की कल्पना की थी वहाँ ये हमारा ऑपोजिशन के कारण हमारा जो सुख के लिए प्रयत्न था वो बांटा गया, क्योंकि कल्पना का सुख था ना तो टिकता नहीं। तो सुख की भाषा क्या बताई साहब ने, मास्टर ने, कि जो दुख है दो दुख, एक दुख है दूसरा एक दुख है, तो बीच में का समय का गाला है वो सुख का है, दो दुख का बीच में का गाला सुख। तो मास्टर ने बताया हाँ? ये कल्पना है सब, अदरवाइज मास्टर ने तो इतना बता दिया कि दुख जैसी चीज है ही नहीं सारा विश्व में, है ही नहीं, कहाँ से आया दुख? इसीलिए तो सुख कल्पना से आया, इसीलिए दो सुख का बीच में तो दुख लगता है। एक सुख चला गया तो पीछे दुख रहा, दुख रहा, और दूसरा सुख आया नहीं वहां रहा, आया तो दुख गया।
तो वो दो दुख का बीच में का गाला सुख का रह गया। और दो सुख का बीच में का गाला दुख का रह गया। ऐसी बात हो गई। अपोजिट से ना सब, यही ज्वार भाटा हुआ। यही जवाब, ये उड़ना गिरना ऐसा सब कुछ। तो कभी की कल्पना होती है कि ये स्वप्न है, सच्चा है, क्या है। तो दादा बाबा ने बताया स्वप्न भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है, लेकिन स्वप्न किस प्रकार से है और सच्चा किस प्रकार से नहीं है वो बताया दादा ने। क्या स्वप्न दिन का स्वप्न होता है तो नहीं है, डे ड्रीमिंग। लेकिन रात्रि का स्वप्न है तो है, ऐसा है। इसी बात है। सच्चा नहीं है कैसा बताया कि स्वप्न वही कर्म है। लोग बोलते हैं कि सुबह सपना आता है तो अच्छा बनने ही वाला है, सब लोग ऐसा मानते हैं। ये मान जाता है, बहुत प्रकार है, बहुत प्रकार है। लेकिन और कुछ नहीं है, अपना मन का विचारधाराओं का एक एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। एक्सटेंशन वो चलता है तो अंदर आके थोड़ा क्लैरिटी हो जाती है, कभी रहता है तो रिपीट होता है। ऐसी बात। लेकिन ये कल्पना मिथ्या भी कर लेते हैं कि सब मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या है। इल्यूजन शब्द ठीक है। इल्यूजन क्यों बताते हैं कि डेजर्ट में जाते हैं, पानी नहीं है, पानी रखते हैं, खलास हो जाता है, जाते हैं और जाते जाते पानी ढूंढते ढूंढते दिखाई पड़ता है, ज्यादा प्यास लगी तो आंख पानी देखती है, दौड़ के लेके जाना जाता है तो नहीं मिलता है तो गिर जाता है, खड़ा होता है, पीछे थोड़ा ठीक होता है और आगे गया तो पीछे और दिखाई पड़ा, पीछे खलास हो जाता है। ऐसा है, इसीलिए इल्यूजन बताया। वो गुजराती भ्रांति का शब्द है, भ्रांति। भ्रांति, भ्रांति मीन्स अनकॉन्शियस स्टेट। क्या बताया? बेभान, बेभान बेभान अवस्था। तो डॉक्टर लोग भ्रांति को अलग बोलते हैं, उसको कोमा बोलते हैं, कोमा कोमा। पॉज हो गया है ना सब, कोमा बोलते हैं। कोई डीप कोमा बोलते हैं, कोई कम कोमा बोलते हैं। भ्रांति, लेकिन भ्रांति टेक्निकल वर्ड है। भ्रांति, to be unconscious about our own self, to be unconscious of our own self, about तो बात दूर रही, our own self, our own, and yet चलते जाना, yes I am, but what I am? वो क्वेश्चन कभी नहीं होता, वो क्वेश्चन कभी नहीं होता। अगर क्वेश्चन हुआ तो उसकी बिगिनिंग हो गई राइट जर्नी की। क्वेश्चन हुआ तो तभी तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स लोग होते हैं, थोड़े से होते हैं, बहुत। ऐसा राइट टाइम के थिंकर्स होने के लिए one needs to be impartial to one's own self. हमें खुद के लिए हमें निष्पक्षपाती होना चाहिए, अर्थात हमें खुद के अंदर जो दो डुअलिटी है, वो डुअलिटी में किसी का प्रकार का पक्ष न लेते हुए हम शरीर के साथ जीना। और वेदांत में उसको साक्षी भाव बताया, वेदांत में। लेकिन वो आई फैक्टर रहा उसमें, इसीलिए गड़बड़ हो गई। वो आई फैक्टर है लेकिन थोड़ा डेवलप्ड हो गया, थोड़ा रिफाइनमेंट आ गया, इतना ही फर्क हो गया और कुछ नहीं। लाइक ईगो तो रहा, बिना ईगो साक्षी कौन बनेगा? इसी बात रही। ईगो जीरो ईगो है, वो ही भगवान की भाषा के साक्षी बन सकते हैं और कोई नहीं। क्या? जीरो ईगो है। और जिन्हें
कोई कमीशन नहीं लेना है। क्या बताया? भगवान का संदेशा पहुंचाने में और भगवान का सुख बांटने में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बने तो उसका इतना ही कमीशन शरीर का इतना होता है, मम्मी शरीर का हिसाब का। वो शरीर रहेगा तो बांटेगा, नहीं तो क्या बांटेगा वो? तो क्या हंसती है? हाँ, उसको निमित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभुदास, हाँ निमित्त। शैला ठीक है क्या? हंसती क्यों? मेरे पर हंसती है? निमित्त बोलते हैं। तो इतना कमीशन तो होना है, फिर उससे एक कुछ कमीशन बिल्कुल नहीं। कमीशन आया तो खलास, दूसरा ही संदेशा पहुंच जाएगा। दादाजी निमित्त बहुत बड़ा है, तो उसके जरा एलाबोरेट करिए। ये ऐसे गार्डन में फ्लावर्स होते हैं, तो निमित्त होते हैं कि नहीं होते? निमित्त होते हैं, तो इसीलिए गार्डन अच्छा लगता है। हाँ, तो घर में हम सब ऐसे गार्डन के फूल सर के रह जावे तो सब निमित्त बन गए। ऐसा दादा बाबा ने बताया। अरे आइए सर, प्रीत आओ, नीचे कुर्सी चाहिए? राज आइए। नहीं, वो आगे सके। ठीक है। छाया, अभी समझ गई कि छाया क्या है। एक पूछे? हाँ बोलो। आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी जगह जाते हैं, फिर आपको सबके नाम और फेस याद कैसे रहते हैं? मेरा स्वभाव ऐसा है, तो स्वभाव उनको मैं काम करने देता हूँ, वो मैं उसमें उसके बीच में नहीं आता, तो स्वभाव काम कर लेता है अपने आप। क्या कहूँ मैं? मेरा स्वभाव का क्या है कि दर्शन स्वभाव है मेरा, वो तो मेरी बेसिक क्वालिटी है। दर्शन मैंने देख लेना, तो कोई दिखाई पड़े में आवे तो देखो ना, नहीं तो क्या देखूं। तो आशा जी जब सामने आ जाए तो मेरा स्वभाव में आ जाता है आशा जी, लेकिन कभी आप नहीं है ना तो बोलते वो आशा देवी जी आई थी, ऐसे आशा देवी जी कौन पीछे मेरा वो स्वभाव जाएगा। वो हाँ ठीक है नहीं तो ये तो मेरा स्टोर हाउस नहीं है याद रखने के लिए। इट इज नॉट मेमोरी स्टोर हाउस, नो जीरो मेमोरी। मुझे लगा आप कुछ तरकीब बताएंगे जिससे हमारी तरकीब एक ही है कि इंटेलेक्ट है ना, वो इंटेलेक्ट सब हमें अंदर जमा करने को स्वभाव वाली है। ये लो। वो नफा लेती है, वो भी बाय कर लेती है, और प्रॉफिट तो लेती ही है वो। तो आज मैंने सुना आज की दुनिया में कि लॉस भी बाय किया जाता है। लॉस भी तो प्रॉफिट वाला ही करेंगे। दुनिया है तो मनुष्यों की दुनिया है। वहाँ ऐसे कौन होते हैं? एक आ जाते हैं, कभी व्यवहार में आते हैं, लेकिन हजारों सालों में कभी एक आ जाता है अच्छा दिल वाला। लेकिन ये आज हमें हुआ है, ये एक्सेप्शनल हुआ है कि among all the ages, सतयुग सभी एज में काल की है, ऐसा only once होता है बस। इसलिए दादा बताते हैं कि हम आपको अगले दिन बताने वाले थे कि महावीर भगवान के समय ये हुआ, वो सूर्य और चंद्र नारायण देव आए, वो इतना वो दैट इज कॉल्ड वंडर। ये आज के 7 वंडर बल्कि बोलते हैं, वो दे आर नॉट ठीक, लेकिन आज सब उसमें कि हम इंडिया जाएंगे और ताजमहल पहला देखेंगे। और कुछ नहीं, बच्चे लोगों को बहुत मजा आता है, ताजमहल देखेंगे। वो लोग का एडिफाइस है ना क्या ऐसा वंडर्स तो ऐसी होती है। वो तो यूनिवर्सल होनी चाहिए। तो ये दादा भगवान का प्रागट्य, उनका प्रकाश ओपन होना एक कलयुग में, वो 11th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है।
एक काल में 10 वंडर हो गए। सभी काल में हो करते हैं काल चक्र में। तो एक काल में हमें जो ये दृष्टि मिली है, वो दृष्टि सारा मोह, क्या बताया? सारा मोह। मोह शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन सारी दुनिया पर राज करता है वो, सारी दुनिया पर। 7 बिलियन पॉपुलेशन, कोई उससे मुक्त नहीं हो पाता। इतने सारे, समझो कि लाख हो गए, बोलो तो 7 बिलियन के कितने हो गए? इसीलिए बताया वो कि पुण्यशाली भाग्यशाली है ना, उनके पास वो चले जाने वाला है। वो ऐसा अब रखे तो जाओ, लेकिन जाएगा वैसा इसी ढंग से जाने वाला है। पुण्यशाली भाग्यशाली, समझे ना? वो उनको निकाल देगा, ढूंढ लेगा उसको, इसी बात है। तो हम उसको है क्या, तो ढूंढेगा ना वो, तो ये तो क्या ढूंढेगा? इसीलिए बताया कि निमित्त बन जाना है बस, और कुछ नहीं। निमित्त। आशा बहन को लगा कि ये अच्छी है, ये बात है, उसको पसंद आती है, चलो थोड़ी बात करें हम, तो निमित्त बने इतने, वो दैट यू कैन डू। पर पीछे बात करते करते लगते हाँ ये ठीक है, लेकिन उसको तो उसके प्रति क्या है कि ऐसे रिलेटिव में ये सारी कथा वार्ता उसमें ज्यादा है, तो बात करे कि है गलत नहीं है, उसका जो कुछ है उसने पकड़ के रखा है, छुड़वाना नहीं कभी भी, नहीं तो हैरान हो जाएगा। लेकिन उसमें उसको अच्छी समझ मिल जाए, वो दे दो आप, दैट यू कैन डू। यू अंडरस्टैंड? सेम बिलीफ उसको थोड़ी सरखी कर दो। बिलीफ तो होती है, सबको होती है, बिलीफ बिना तो मनुष्य ही नहीं, मनुष्य ही नहीं। और मनुष्य बिलीफ के साथ है, इसीलिए तो सारा विश्व है। गॉड्स है, डेमी गॉड्स है, गॉड्स को ही डेमी गॉड्स बोलते हो, तो एक ही शब्द है, लेकिन सब अपनी अपनी भाषा में ऐसा बोल देते हैं, डेमी शब्द लगा दिया। गॉड्स महीना वो जो ईश्वरीय तत्व है सभी, ऐसे उसके कुदरत में उसके रखवाले और समझो रेंस आना है तो रेंस का रखवाले वाला होता है, पवन देव वगैरह बोलते हैं, इंद्रदेव वगैरह, ऐसा सब रखवाले होते हैं, वो देवलोक। तो मनुष्य में से वो जाते और कुछ नहीं, मनुष्य में से जाते। तो वो रखवाले ऐसे हो कि अपना मृत्यु लोक, मनुष्य लोक के लिए वो सब ऐसा सब रखते हैं, लेकिन उसकी सत्ता नहीं है, उसके पावर नहीं, खुद का पावर नहीं कि हम ऐसा कर सके। वो पावर कहाँ से जाता है? वो मनुष्य से नहीं जाता है। तो मनुष्य लोग आज के जीवन में रखवाले तो है, लेकिन आज के जीवन में वो जानते नहीं है कि वो रखवाले है, उसको खुश कैसे रखना हमें, तो जानते नहीं कोई। लाख यज्ञ हवन कर जानते कोई नहीं। इसीलिए वो समझ गए कि आज ये लोग जानते ही नहीं, तो चलो हमें शांति हो गई, हम ऊपर रह के काम करते रहेंगे। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हमारे आसपास ही है, लेकिन ऐसा होता है क्या कि आज के मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया है कि अननेचुरल हो गया है। तो कुदरत में इतना अनबैलेंस हो गया है। कुदरती फोर्सेस हमेशा बैलेंस ही होते हैं। मनुष्य कितना ही अनबैलेंस करे, कुदरत उसको बैलेंस कर ही देती है। वो व्यवस्थित शक्ति के कारण है। क्या बताया? शक्ति है, उस शक्ति में इनबिल्ट पावर्स है। ऐसे पावर के हिसाब से कुदरत के माध्यम से सब बैलेंस हो जाता है। जब बहुत ऐसा हो जाता है तो कुदरत के माध्यम से जो नेचुरल हैपनिंग्स बनना है, जस्ट लाइक सुनामी जो बोलते हैं, वैसे तो कुदरत का है, लेकिन उसका और मनुष्य का गहरा संबंध है। आज का मनुष्यों के मगज का माइंड लेवल के सभी सुनामियों का सम टोटल होके ऐसा उसका इफेक्ट, वो सारा इफेक्टिव है, पूरा इफेक्टिव है, पूरा इफेक्टिव। कहाँ होता है? दरिया में, बॉटम में जाके उसकी। इसलिए आज इकोलॉजी, परिसर बोलते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि पॉलिटिशियन सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, और डिप्लोमेट को यहाँ नहीं रखने देते। नहीं हुआ डिप्लोमेट को नहीं, तो डिप्लोमेट ही कहाँ रहे आप तो कह रहा काम से, इसी बात है।
ये तो अकबर राजू को अच्छा रखे ऐसा बीरबल था एक। वो समझ गया था कि बादशाह को कैसा रखना। हमारी प्रार्थना से उन पर कुछ असर होता है जी, हमारी प्रार्थना करने से प्रार्थना इज द बेस्ट थिंग। ह्यूमन बीइंग अगर कुछ कर सके तो खाली प्रार्थना कर सकता है। प्रे उसमें बहुत बल होता है, लेकिन वो प्रार्थना हमेशा कोई भी करे तो प्रार्थना और हृदय का सीधा संबंध हो जाता है। तो एक नेगेटिव मनुष्य है, उसकी भी प्रार्थना हो तो उसका भी इतना उसमें छोटे में भी उसको हृदय का कनेक्शन है तो इतना बन जाता है। तो प्रार्थना में पॉजिटिविटी ज्यादा रचती है। क्या कि सबको सुख चाहिए ना, सुख दुख देने वालों को भी सुख चाहिए। हाँ, उसको तो प्रार्थना में बस बहुत बल है। ये कबीर का एक दोहा है, हाँ, वो है दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ये बात है, ये कलयुग के लिए एक काल के लिए खास है। और इसीलिए सब लोग जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप्स हो गए, मिलियंस गए, और जो बच्चे लेडीज सबसे ज्यादा गई। तो उसमें जो कंसंट्रेशन कैंप में सब गए, गैसेस वगैरह हुए, तो मैंने 20-25 साल के आगे रीडर्स डाइजेस्ट में उसका एक आर्टिकल आया कि व्हाट वाज देयर कंडीशन ऑफ दोज हु वर गेस्ट इन कंसंट्रेशन कैंप्स। फिर जो जूस तो उसमें तो कोई सहारा नहीं उसके, तो बोलते हैं तो एवरीबडी scribbled on the wall this way, which way, with something like that or something like that. Oh God, we pray you, give us peace, like that. और छोटे बच्चे लेडीज सब कुछ कहीं लगते, तो ऐसे वो उसने कोई पीछे जाके सब देखा था, उसने तो उसका आर्टिकल लिखा था उसने, one who had seen with his own thing, he had gone there, and after that, सब 20-25 साल के आगे रीडर्स डाइजेस्ट में आया था। रीडर्स डाइजेस्ट में इसी बनी हुई हकीकतें आती रहती है कभी कभी। तो प्रार्थना में बड़ा बोल, पूरा प्रार्थना हुई, उसका चारा ही नहीं रहा, कुछ नहीं, कुछ रहता नहीं, पीछे प्रार्थना पर लग जाता है आदमी। लेकिन प्रार्थना क्या है कि प्रार्थना जिसके कारण हम करते हैं, जिसके लिए, वो हमेरा जो भी कारण है वो पॉजिटिव होना, इतनी बात है प्रार्थना में। तो ही प्रार्थना, उसके अंदर शक्ति, उसका बल होता है, नहीं तो प्रार्थना बनती ही नहीं, कभी भी नहीं बनेगी पॉजिटिव शक्ति। मनुष्य कितना भी नेगेटिव हो, फिर भी प्रार्थना के समय इतना, लेकिन वो उसका समय की वो पता है बाती નીચે બેસા છે તારાથી તો અહીંયા આવતી ને તમે અશોક ભાઈ ત્યાં જાઓ, અશોક તમે ત્યાં બેસી અહીંયા આ જગ્યા બેસી જશે, પણ જૂનું ઓળખાણ લાગી ગયું છે, બેઠ जा। आज गलती से मुझे याद कर लिया तो आ गई, गलती से आज याद कर लिया, भूल गई थी क्या? कैसे भूल सकती है पापा मम्मी कैसे? तो प्रार्थना की ऐसी बात है, प्रार्थना इतनी बॉर्डर लाइन इतनी सूक्ष्म है उसकी कि बियॉन्ड दैट कोई क्रॉस नहीं कर पाता। तो क्रॉस किया प्रार्थना नहीं रहती किसी, बहुत फाइन बाउंड्री है प्रार्थना की। इसलिए हमने बताया आपको कि वो हृदय से संलग्न होती हमेशा, हमें के लिए होती है। दैट इज द अल्टीमेट एफर्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट, दैट इज द लिमिट ऑफ एफर्ट्स। बियॉन्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव नो पावर, नथिंग। अगर उसको ट्रांसग्रेस हो गए तो गए, समझे? इसीलिए तो आइंस्टाइन ने आखिर में बता दिया, कितना साइंटिस्ट बड़ा होके इतना क्या क्या उसने, स्पेस क्या है, समय क्या है, टाइम क्या है, मोशन क्या है,
कहाँ कहाँ क्या क्या क्या, लेकिन आखिर बता दिया, उन्होंने बता दिया। देखा कि रिलीजन होता है, लेकिन कब उसके साथ साइंस हो तो क्या, अगर साइंस नहीं होता तो रिलीजन अंधा हो जाता है। ऐसा आइंस्टाइन साहब ने बताया। उसके पीछे विज्ञान नहीं होता है, धर्म के पीछे तो अंधा हो जाता है। आप समझे? और साइंस क्या है? तो साइंटिस्ट था ना तो बड़ा। तो साइंस रिलीजन के साथ नहीं होता है तो लूला हो जाता है। एक लेग से कितना मुश्किल से चलना, तो साइंस तो कैसा बोला जाए? तो बैलेंस होना चाहिए, वो तो बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए साइंस और रिलीजन का उसकी नजरों में आया तो बता दिया उन्होंने। ऐसा कुछ बताया नहीं? क्या बताया? कोई मतलब बताएंगे इंग्लिश में? Science without religion is lame, and religion without science is blind. मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बताया। हाँ? इसी बात है। रिलीजन तो स्टार्क फैक्ट होनी चाहिए। क्या बताया? स्टार्क फैक्ट। उसमें कोई कल्पना चलती ही नहीं किसी की भी। तो भगवान तो फैक्ट होनी चाहिए कि नहीं? कौन सारा विश्व में बोलेगा कि भगवान फिक्शन है? बताओ। आशा में कोई भी होता, चलो जो भगवान में नहीं मानता उसको ही पूछो। वो खुद में तो मानता है ना। अपने में विश्वास होता तो भगवान मान लेते। भगवान है। ऐसी बात है। तो कई लोग बुरी शक्ति में भी विश्वास रखते हैं। वो बात सही है, लेकिन है उसमें तो विश्वास रखते हैं। हाँ। बुरी तो बुरी, लेकिन है ना। इसीलिए वो मानता है कि भगवान है। समझे ना? भगवान का अर्थ क्या है बेसिकली? कि होना, टू बी। बेसिकली उसका अर्थ है। लेकिन भगवान जानने के लिए सबका प्रयत्न है कि सबके लोगों का भगवान क्या है, कैसे का। तो होना क्या? ये प्रश्न होता है कि नहीं हमें? ये अगर प्रश्न हुआ, इससे वेरी गुड साइन ऑफ प्रोग्रेस ऑन द थिंकिंग का प्रोग्रेस। पर होना क्या? तो ढूंढता है वो, इंक्वायरी करता है। तो होना क्या है? ये बात है। उसको गीता जी में जिज्ञासु बताया, और अर्थार्थी भी बताया। अर्थार्थी महीना होना, लेकिन होना किस जग से? तो भक्ति बोलते हैं वगैरह से बोलते हैं, जात जात का ये सब है। ऐसी बात है। तो आज आप तो हो भी गए, और क्या है वो भी कैसे समझ गए हम ये है। नहीं समझे? और अभी ये 5 फंडामेंटल से जो बाकी लाइफ चल जाती है, उसमें आप पूरे बनते जाते हैं। हुए अस्ता उसको वस्तुत्व बोलते हैं। एग्जिस्टेंशियल स्टेट। क्या? अगर एग्जिस्टेंशियल स्टेट हुआ तो वो इमेजिनेशन तो नहीं होना है ना? क्यों होना? इमेजिनेशन नहीं होना है, फैक्ट होना है ना? हाँ। तो क्या? तो हम ये है, I am, therefore, now for perfection, I gradually come to know Asha as Asha is. Not as Asha was. Thank you. Nor as Asha will be. No, I am. And therefore I will come to know Asha as Asha is. As it is. हम भगवान को ईट नहीं बोलते हैं। भगवान ईट नहीं बोलेंगे। हाँ? भगवान तो कैपिटल रखेंगे सब कुछ। तो ईट रखना हो तो भाई आई कैपिटल करेंगे, और उसको ईट रखना हो तो आई स्मॉल रखेंगे। एक पुरुष और प्रकृति का संबंध बताया। समझे? बात है।
એકાદ પદ બોલ ફર્સ્ટ ક્લાસ. આ જૈન બોલાવશે આજે, એનો વારો. મનવા આપણા જ ઘરમાંથી ખડ જગ હટાવો પાણી તાણી કલુષિત મિટાવો મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કડ જગ હટાવો સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અહમ કેન્દ્રી ઝઘડાઓ ફિટાવો કોઈને દુઃખદાઈ અતિક્રમો ઘટાવો જીવણા અણહકી ઈચ્છનાના બદ ધ્યાન ક્ષમાવો મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કડ જગ હટાવો કોઈનું એ સુખ લૂટી કોઈ સુખી થતું નહીં સુખ દેતા સુખ મળે મીટે છે અંતર કેડ સુઝકા સિદ્ધાંતિને વૈજ્ઞાનિકે સતયુગે જીવી જાઓ મનવા આપણા જ ઘરમાંથી કડ જગ હટાવો મનવા આપણા જ ઘટમાંથી
नेगेटिविटीज जो है तो स्वाइप आउट करते जाना है। तो ऑटोमेटिक स्वीपर्स मिलते हैं सब। દાદા એમાં અને રિલેશનમાં ચેરિટી બિગિન્સ એટ હોમ આપ બોલે છે ને ઘણી વાર એટલે એ જ ને. In everything begins at home. That is what. Charity, everything. But charity basically for human beings, it makes sense, right? It makes sense because human beings never know that what for we are doing, why for we are. To give out or to take? Basically it is for give out, but who knows that? Very human body is meant for that. But give out how? People understand as things given and taking and giving. No, it is not like that. There, everything is there. And you cannot give out anything except love. And love has no place anywhere in the body except at heart and heart center. Trouble is here. So we have to search out there only. It is so near to us, no? You have to go to doctor for that. To understand the heart. Doctors will explain us. Heart. Everybody wants, but they don't know the language of love. That is the problem. Love is that where there is no give and take. No give and take. Absolutely. Absolutely, I say. But human beings with physical bodies, for them to understand this is very difficult. And particularly in these times. Very. It becomes crux of the whole life and living puzzle to understand. And therefore, Lord Mahavir, out of 5 fundamentals or principles of living for the celibates, they say, not for householders. Householders, they come in lower form because they are with relations. So out of 5, the Brahmacharya Vrat, he made it very pertinent. Before him, when Lord Parshvanath was there, it was not there. It was already included in a Parigraha Vrat. A Parigraha Vrat means not to own anything. Not to own anything by mind. And therefore definitely by speech. And hence by body. That means not to own body. When you are a sannyasin, how can you own your body? Your body is meant for others. For others good. That is how. साधु का पेट लोगों का कल्याण के लिए है. खुद के लिए खाना करके ऐसा नहीं है. खाना किसके लिए? कि शरीर को टिकाना है बस. इतनी, nothing more than that. But sometimes साधु थोड़ा लर्निंग स्टेज में होता है तो बोलता है खाना आवे जो को दे दे भिक्षा में, माधुकरी वगैरह में, तो उसको मिक्स करके ले लो तो नहीं तो चिटक जाएगा हम. ऐसे होता है. स्टेजेस होते हैं सब डेवलपमेंट के. इसी बात है. तो ये हमारे पास 2-3 आप पूछिए. बोलो. इसी से कनेक्शन में है. बोलिए. देखिए मैं बहुत सालों से काफी जगह सत्संग में जाती हूँ, लेकिन यहाँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अभी 2 दिन पहले की बात है, वो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. क्या हुआ कि लोग स्वीट्स ला रहे थे ना, डिजर्ट वगैरह ला रहे थे, तो खत्म होता जाता था, फिर और कोई दूसरा आ रहा था, तो वहाँ पे एक रस मलाई किसी ने दी थी. तो मेरी जो फ्रेंड थी वो जाके लेके आई थी, लेकिन मैं जब गई थी तब वो खत्म हो चुकी थी. तो हम दोनों की बात हुई, तो उसने कहा तुम रस मलाई नहीं लाई. मैंने कहा नहीं, खत्म हो गई. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. एक यंग लड़का, आई एम अमेज्ड एट दिस, यू नो, इन हिज 20s और यू नो, वो कहता है ये मेरे पास है रसमलाई, ये आप ले लो, आपको रसमलाई चाहिए थी. I mean I was so shocked. I thought maybe I am not hearing right. मैंने यूँ करके उसकी तरफ देखा, तो कहता है नहीं ये आप ले लो. और उसकी प्लेट भरी हुई थी, उसे खा रहा था वो. तो मैंने कहा नहीं,
मुझे ज़्यादा मैंने उससे कहा मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम खाओगे तो। हाँ, So that should be our human life. मतलब ये पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। right. मतलब उससे मुझसे कुछ लेना नहीं था। पीपल नॉर्मली ऑफर जब उन्हें कुछ बड़ा वापस में लेना होता है तो, लेकिन आशा जी हम तो इतने गैदरिंग है, लेकिन गुरु पूर्णिमा ऐसा प्रसंग होता है ना, तब तो ये अमेरिका में 800,000 गैदर होना डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। कोई आते हैं सारा सभी स्टेट्स में से, कनाडा से, लंदन से, कहीं कहीं से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कहीं कहीं सब जगह, इंडिया से आते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ भी एक ही भाव ऐसा रहेगा, सब जगह एक ही बात रहेगी। सबको नेचर में आ गया है ना। अभी हमें तो जन्म जन्मांतर से लेते लेते ही आते हैं, जन्म जन्मांतर से। जरूर क्या है सुख, लेकिन सुख क्या है वो जानते नहीं कोई, इसलिए सुख कई कई भाषा में समझ लेते हैं अपने अपने। कितनी भाषा है, शरीर है, और ये काल में तो गड़बड़ हो गई बिल्कुल। इसीलिए भगवान ने बताया, और हमारे भारत में वेदांत में सनातन धर्म में आज तो सारा ये मटेरियल साइंस बहुत डेवलप हो गया है, उसके कारण आज हमें लाइफ जो दिखाई देती है वो एक्सेसिव हो गई है, बहुत एक्सेसिव हो गई है। सुख ढूंढते ढूंढते सुख को इतनी मात्रा में ले गए हैं लोग कि बहुत एक्सेसिव हो गए। इसीलिए इंटरनल का, इनसाइड का बैलेंस थोड़ा भी जीवन में मनुष्य को होना हो वो नहीं रहा, अनबैलेंस हो गया है। क्या सुख की कहाँ तक होना चाहिए कि बाहर का और अंदर का जीवन में बैलेंस रहे, तो कुछ हैप्पीनेस रहे, उसको कुछ शांति अंदर से रहे, और आगे कुछ उसकी प्रगति उन्नति होती रहे। लेकिन ये रहा नहीं, तकलीफें हो गई है, एक्सटर्नल और अंदर उसका अनबैलेंस हो गया है। और मोर पर्टिकुलरली जैसा मास्टर ने बताया है कि दिस हैपेंड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। इफ यू सी इन अमेरिका आप देखेंगे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी की सारी व्यवस्था देखी, जर्मनी की, तो आइजनहोवर जी ने जर्मनी का देखा, वो वहाँ उन्होंने कॉपी किया। मोर पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट इज व्हाट यू सी अमेरिका टुडे। नाउ इट्स ए क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी 60 years, 60 years. This is all, and what we get lost in all these things. This is what we have to understand. Basically, we from India, Indian Americans, they have got everything. Culture is there, but unfortunately, there are no good balanced thinkers. They are good in number enough who can have effect. No, very difficult. Otherwise, you can bring out your own culture right way. Every smallest of the smallest nation, they bring the cultures very well. But here it is difficult. But that our culture is not like that. You see, we are tolerant. Everywhere tolerant, चलने दो. और इंडिया में तो चलने दो, और अमेरिका आओ, नो कुछ नहीं चलेगा, चलने दो, यहाँ नहीं चलेगा। So, ये कौन इंग्लिश में किसका है? You, तेरा? Sejal. When I see, Tejal. When I see like dislike, those opinions, are they from previous input? Okay. Yes, they are from previous input. Previous inputs of darkness. Belief darkness. That is wrong belief darkness. all likes and Price, dislikes. past. Yes. What are inbuilt in the body? What are inbuilt in the body? Body is being built by these opposites. Basically these two, and उसकी सारी आर्मीज है सब, समझे? इनबिल्ट है, right from the stage of concealment. Father, mother are mere instruments for the concealment of us to get born.
Otherwise, one can never get born. But unless one is born by oneself, for oneself, as oneself, one cannot get conceived. Sorry. I thought I was following. इसीलिए प्रकृति को बताया, प्रकृति प्रसव धर्मी है। प्रसव में ना बर्थ देना, प्रकृति स्वयं खुद का बर्थ देती है। वो कैसा देती है कि ओपिनियन से। An opining state is at mind state level and it is at very subtle stage. The first vibration that happens at the mind of I factor, wrong belief I factor, first vibration, that is called samrambha. Samrambha. It is not perceptible to anybody. No. You follow? And the moment that opinion gets expressed out, it gets into the stage of samarambha. आरंभ में beginning हो गई, बाहर निकल गया, तीन बाहर छूट गया, ओपिनियन बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही वो सीडलिंग सर के खुद कंसीव हो गया। ऐसा माइंड लेवल पर कंसीवमेंट चलता रहता है, और कंसीवमेंट अकेला माइंड से होता ही नहीं, बिकॉज माइंड इज वेडेड टू स्पीच, or rather speech is wedded to mind, whichever you can say. क्या बोले? Life is comedy or tragedy? आप बताइए. Both. More comedy. More comedy, yes. That is why Shakespeare, what is it? That is in Midsummer Night's Dream. Merchant of Venice, tragedy. But tragedy made into comedy again. Such a writer. समझी? अगर वाचू further. Or is it formed immediately? No. Yes, but whatever is we have passed, that is in the body. Because of that, presently what we are living out, at the same time, what is getting discharged out, we again get ourselves as charged, because we are very familiar with charging. And we are very unfamiliar with discharge aspect. This is the sorry state of life for everybody. Where everybody should be aware at both the points. Both the points are aware. So one gets lost. What case? Huh? And in relative, hey, I don't like you, get lost. भगवान को get lost बोल देता है. समझी? Immediately. It happens so quickly, but not for those who are liberated. Who are liberated from mind. Who are liberated from mind. And therefore one is liberated from speech. Mind you? Therefore one is liberated from speech. And therefore, immediately, mind controlling senses and whole body, exterior body, that all five senses, you get liberation from them also. Do you understand? The experiences of the world and world happenings that are on account of five senses. And you are, therefore, your whole world is won over by you. World is won over. उसको जगत जीत बोलते हैं. इंद्रिय जितेंद्रिय बोलते हैं. क्या बताया? जितेंद्रिय जिनको जगत जीत बोल सकते हैं. जगत महीना शरीर, शरीर की ओनरशिप उससे मुक्त हो गए तो जीता गया नहीं. लेकिन अभी पूरा विक्ट्री एंजॉय कर सको ऐसा इतना स्टेज नहीं आया, इसलिए उसमें आप लग गए ऐसा लिव आउट करने में. गलत बताया मैंने? उनको पसंद बहुत पड़ता है, लिख लेते हैं. कितनी अच्छा होगा कि अगर वो एक पद सुन या भजन सुना दें. एक सरस्वती माता का पहले ऐसा बताया आपको होना ही चाहिए. नहीं, सरस्वती माता का बड़ी अच्छी लाइन है, थोड़ी सी लेकिन बहुत अच्छी लाइन है, वो उनकी फेवरेट है.
चलो ना 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 बड़ी चली कांटा हो गया कंठे विराजो ए दादा कंठे विराजो रे दादा उचरा वो सवरी भाषा उचराओ सवरी भाषा सन्मुखे सरस्वती माता सन्मुखे सरस्वती माता सुधराओ मनवाणी भाषा सुधराओ मनवाणी भाषा जो अनुभव तारा जो अनुभव मन कुवे So slow, Dada. પોતે પોતાના જોવા પોતે પોતાના જોવા અવળિયા વાણી ના ખાચા હરિયા વાણીના ખાચા કંઠે બિરાજો હે દાદા કંઠે વિરાજો હે દાદા જરાવો સવરી ભાષા ઉચરાવો સવરી ભાષા સતાની ભાષા દુરુપયોગે સતાની ભાષા દુરુપયોગે વપરાતા ઉઘાડે કાંટા વપરાતા ઉઘાડે કાંટા નિર્દોષી વાણી નિમિત્ત નિર્દોષી વાણી નિમિત્ત સંસ્કારે માધુર્ય શાતા સંસારે માધુર્ય શાતા સન્મુખે સરસ્વતી માતા સન્મુખે સરસ્વતી માતા સુધરાવો મનવાણી ભાષા સુધરાવો મનવાણી ભાષા ચારિત્ર બળની ઓળખ ચારિત્રબળની ઓળખ સંચારની કરેલી વાચા સંસારે નીકળેલી વાચા વિચાર ઉજાને આચારે વિચાર ઉજારે આચારે વર્તાવો પરમાર્થ શાસ્ત્ર વર્તાવો પરમાર્થ શાસ્ત્ર કંઠે વિરાજો હે દાદા કંઠે વિરાજો હે દાદા ઉચરાવો સવરી ભાષા ઉચરાવો સવરી ભાષા
लाइन्स इतनी अद्भुत हुई है कि दिस इज द क्रक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स. स्पीच, एक्सप्रेशन, क्रक्स. इसलिए कविराज को लगा कि दादा को हम वो ध्यान बोलते हैं ना, चक्र पर ध्यान करते हैं, तो ध्यान दादा को यहाँ ध्यान करें तो हमारी सब वाचा में सुधार आ जाता है. It's an experiment. It's an experiment of focusing our own self, by our own self, for our own self, for the sake of our Saraswati expressions, by our own self. Saraswati expression means Goddess Saraswati manifested and expressed out personifically. Am I right, sir? Yes. This is how it happens. For all of us, both of us. Kanche Viraju. So, Mohan Bhai, Magan Bhai, Luka Sangpati, and General Sangpati, Dilip Bhai, and Magan Bhai, you, without owning this house, you owner of the house. He says, I don't own this house, this is all your house. My house. So, can we extend one day more tomorrow? And we will. Basically, another proof, the prayer is answered. Vijay knows, Sheila Ben knows. I was saying, I don't want it to enter. Mohan Mita should allow. So this will go tomorrow with my blessings. Each and every one. This band, it will be wonderfully nice. So tomorrow, agreed? So I think tomorrow what we will do, ये 4 आ गए हैं मेरे पास, उसका मैं लूँगा सत्संग. तो शुरू से कर देंगे, इसमें पद बोलेंगे, तो ये मेरा समय अच्छा रहेगा. And I will explain these lines also. ठीक है? मुझे देना करना. ठीक है? तो सब साथ में रखो, उसमें ऐसा ही करके. किसकी बुक है? तो आमज रख दे, आमज आप जे tomorrow, right? So हम आज मंत्र बोल लेते हैं और ये कल के लिए रखते हैं. मैं उसका विधि कर दूंगा. नमो वितरागाय, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो सब सावणम, नमो पंचन मुक्कारो, सर्वपावपणासणम, मंगलाणम च सर्वेसीम, भवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा. अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा. अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान परमात्मा. अंतर्यामी श्री कल्याण शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा. आप हर एक जीव मात्र के अंदर जो द्रव्य गुण अवस्था से विराजमान है, वही द्रव्य गुण अवस्था से आप मेरे अंदर भी शुद्धात्मा ज्योति स्वरूप से प्रगट शुद्धात्मा ज्योति स्वरूप से विराजमान है. हे शुद्धात्मा भगवान, हम
आज्ञा के अधीन वाले, हम आज्ञा के अधीन वाले, जीवन बिताने वाले, जीवन बिताने वाले, आपको आपको भेदभाव से, भेदभाव से, अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं, अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं, और जागृति से, और जागृति से, मुझ आज्ञाधारी से, मुझ आज्ञाधारी से, जो आज्ञा भंग का दोषों जो आज्ञा भंग का दोषों हुए हैं, उनको आपके समक्ष रखता हूँ, उनको आपके समक्ष रखता हूँ, उनका खूब पछतावा करके, उनका खूब पछतावा करके, आपके पास क्षमा याचना करता हूँ, आपके पास क्षमा याचना करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। फिर से हम आज्ञाधारी वैसे दोष ना करे, वैसे दोष ना करे, ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो, ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो, जिससे हमें सभी व्यवहार में, व्यवहार दृष्टि से होते होते, व्यवहार दृष्टि से होते होते, हमारी निश्चय दृष्टि से, कभी भी ऐसी अजागृत अवस्था से रहते हुए हमेशा जागृत अवस्था से, शुद्धात्मा दृष्टि के, अवस्था से, कॉन्शियसनेस से बात करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ये आज्ञाधारी पर ऐसी कृपा करे, इससे उसे भेदभाव सब छूट जाए, भेद स्वरूप प्राप्त हो। हम सब आज्ञाधारियों को अभेद दृष्टि से आपके अंदर एक तन्मयाकार रहने की शक्ति प्रदान करो। ठीक है। जय सच्चिदानंद।